اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا. ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد. انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کرتے ہیں اس کے اوپر, تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ گورنمنٹ نے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی. انہوں نے الٹا برا بھلا کا دوگلے ہو تم. امریکہ بڑا ناراض ہے, وونڈڈ بیئر ہے, کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا, ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. چند 100 القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں, ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں, وہاں ہمارے شہری مر جائیں. وہ جو پیریڈ تھا ہماری تاریخ کا سب سے سیاہ وقت تھا. امریکہ ہمارا دوست ہے, کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے, وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ ہے نا, وہ انسان میں غیرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گزشتہ روز قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے چرچے آج بھی جاری ہیں. کل بلا شبہ ایک تاریخی دن تھا. تقریباً 3 سال کی حکمرانی کے بعد وزیراعظم کا لہجہ اور گفتگو بڑی بدلی دکھائی دی. وزیراعظم نے کھل کر ملکی اور عالمی معاملات پر بات کی, بالخصوص افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا اور پاکستان کے کردار پر امریکہ کو 2 ٹوک پیغام دے دیا. لگا کہ پہلی بار ایک غیرت مند, بہادر اور ذمہ دار وزیراعظم دنیا کو پاکستان کا پیغام دے رہا ہے. وزیراعظم نے نہ صرف پاکستان کی ماضی کی پالیسیز پر تنقید کی بلکہ امریکہ کی منافقت کو کھل کر بیان کیا. واضح کر دیا کہ پاکستان کسی جنگ میں نہیں بلکہ صرف امن میں پارٹنر بن سکتا ہے. دوسری طرف آج وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر چینی صحافیوں کو انٹرویو دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ چین پکا دوست ہے, کسی بھی قسم کا کوئی بھی دباؤ تعلقات میں دراڑ نہیں ڈال سکتا. امریکہ اور مغربی ممالک کو ساتھ دینے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنا درست نہیں. امریکہ پاکستان سے کسی ایک ملک کے انتخاب کی امید کرتا ہے. وزیراعظم نے واضح کر دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پاکستان کا مستقبل سی پیک سے وابستہ ہے, یعنی کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان جاری سر جنگ میں پاکستان اپنے ہمسائے اور اسٹریٹجک پارٹنر چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وزیراعظم نے کیا گفتگو کی, سنواتے ہیں. Pakistan, there was always a very special relationship with China, although our relationship started 70 years ago. It's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. Because the relationship between Pakistan and China is very deep, and it's not just the governments, it's a people-to-people relationship. To sum up, whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to. گزشتہ روز وزیراعظم نے اپنی تقریر میں ماضی کے برعکس اپوزیشن جماعتوں کو بھی برا بلا نہیں کہا, نہ ہی اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم کی تقریر میں خلل ڈالنے کی کوئی کوشش کی گئی. اسی حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے جی, اور کہا ہے کہ سیاست کا مستقبل اب تبدیل ہونے والا ہے. حکومت اور اپوزیشن مل کر نئی راہ پر چلنے والی ہیں. وزیراعظم نے اپوزیشن کی جانب ہاتھ بڑھا دیا ہے. اب سیاست ملکی سالمیت کی سیاست پر مبنی ہوگی. اپوزیشن اور حکومت کٹھی ہو, اور میرا دل سے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو. پاکستان کا مستقبل کی سیاست ملک کی سالمیت کی سیاست ہونے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر ایک نئے راہ پہ چلنے والی ہے. 3 سال تک جو اپوزیشن ہمیں گرانے کی باتیں کر رہی تھی, ذہنی طور پر وہ اتفاق کر چکی ہے کہ 2 سال عمران خان کے اور ہیں. جی ہاں, وزیر داخلہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج ہونے والا اجلاس ملک کی سیاست کا رخ تبدیل کر دے گا. سیاست کا مستقبل واقعی تبدیل ہونے والا ہے. اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی سینئر قیادت موجود ہی نہیں تھی, جس پر تنقید بھی سامنے آتی رہی. لیکن دوسری طرف آج نہایت اہم معاملے پر پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس جاری ہے, جس میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار بھی شریک ہیں. انتہائی اہم وقت میں نہایت اہمیت کا حامل یہ اجلاس, جس میں قومی سلامتی سے متعلق امور ایجنڈے کا حصہ ہیں. افغانستان کی موجودہ صورتحال اور امریکی فوج کے انخلا کے بعد ممکنہ ریجنل چینج اور اس کے پاکستان پر اثرات کے حوالے سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. بھارت اور کشمیر کے حوالے سے صورتحال پر بریفنگ دی جا رہی ہے. اعلامیے کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کشمیر اور افغانستان کی حالیہ صورتحال اہم خارجہ
बहबूद, दाखिली सलामती समेत अंदरूनी चैलेंजेस और खत्ते में वकूफ पजीर तब्दीलियों पर ब्रीफिंग भी दी है, जिसमें बताया यह गया है कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में इखलास के साथ निहायत मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की भरपूर काविशों से अफगान धड़ों और मुतहरिक ग्रुपों में मुज़ाकरात की राह भी हमवार हुई है। पाकिस्तान की भरपूर काविशों से अमेरिका और तालिबान के दरमियान भी बामानी जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हुए हैं। और नामे में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा और अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार भी जारी रखेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही, उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान सरहद पर बाढ़ का काम 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निज़ाम जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ब्रीफिंग से बाहर आए तो उनसे मीडिया ने सवाल किया, उन्होंने क्या जवाब दिया, दिखाते हैं। सर, अभी तक की ब्रीफिंग कैसी रही है? बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव। आपने क्या सवालात किए सर? देखिए, ये कैमरा में सारी मैं तो वैसे तो सर आप मुतमईन हैं? मुतमईन है सर, मुतमईन आप ब्रीफिंग बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव। तो आप इसे ब्रेक थ्रू समझते हैं पार्लियामेंट के लिए? मगर एक अहम मामला यह है कि इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही मौजूद नहीं थे। इंतहाई अहमियत का हामिल ये इजलास मुल्क के सरबराह के बगैर हो रहा था, यानी जिस तब्दीली का तासुर दिया जा रहा था वो 24 घंटे भी बरकरार नहीं रह सका। जिस दौरान यहाँ में इजलास जारी था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसान कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज भी कर रहे थे, चीनी मीडिया को इंटरव्यूज भी दे रहे थे, मगर जहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को होना चाहिए था वहां पर वो मौजूद ही नहीं थे। अहम कौमी अमूर पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिशों में वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी यकीनन अफसोसनाक है। इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और बिलखुसूस ये जानेंगे कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म अचानक अमेरिका के खिलाफ खुलकर क्यों बयानात दे रहे हैं, क्योंकि हमें वो टाइम भी याद है जब वज़ीर-ए-आज़म साहब अमेरिका का दौरा करके वापस आए थे और किस किस तरह की बातें उन्होंने की थी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पर खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कल भरपूर तकरीर की और अमेरिकी मुनाफत पर खुलकर बात की। इस सारे मामले पर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या जो फैसले हो रहे हैं दुरुस्त हैं या फिर नहीं, इसी के ऊपर जो है अब वो आज हम बात करेंगे। ज्वाइन किया जी नसरुल्लाह मलिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ हैं नियो के, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, बहुत ही अहमियत का हामिल इस इजलास को कहा जा रहा है, बहुत बड़ा रीजनल चेंज आ रहा है, वर्ल्ड वाइड बड़े मसाइल हैं, अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात का मामला है, बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान किसी एक इंतखाब का मामला है, ये भी बहुत बड़ा मामला है। बात हुई इनके ऊपर, लेकिन उस पर भी बात करने से पहले एक बड़ी अहमियत जिस चीज़ ने इख्तियार कर ली वो वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी ने इख्तियार कर ली। हर बंदा जो है वो इस पर बात करने से पहले इस पर बात कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो क्यों मौजूद नहीं थे। शुक्रिया आशा। देखें, पहली बुनियादी बात तो ये है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती, इसमें पार्लिमानी कमेटी का इजलास था और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस कमेटी के मेंबर नहीं है और एक प्रोटोकॉल के लिहाज से ये ब्रीफिंग थी तमाम सियासी जमातों के सरबराहान, आपकी जो सियासी क़यादत पूरे मुल्क की और जो पार्लिमानी क़यादत है उनको ब्रीफिंग दी गई थी आपके अस्करी हुकाम की तरफ से। ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने ये ब्रीफिंग दी और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा भी इस ब्रीफिंग में शरीक हुए। इस मीटिंग का जो बुनियादी मकसद है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो आजकल इस खित्ते की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं, जो चैलेंजेस हैं, आपकी अस्करी क़यादत और ये खुसूसी क्रेडिट जाता है इस वक्त के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब को और DG ISI जनरल फैज़ हमीद को। उन्होंने इस बात का डिसीजन किया कि सियासत में जो कुछ होता है होता रहे। सियासी जमातें अगर एक दूसरे के खिलाफ बातचीत करती हैं, उनका अपना अपना अपोजिशन का अपना किरदार हो सकता है, हुकूमत का अपना किरदार है, लेकिन कौमी सलामती के इश्यूज पर और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं अंदरूनी और बैरूनी, उस पर आपकी सारी जो सियासी क़यादत है, पार्लिमानी क़यादत हो या आपकी सियासी क़यादत हो, उसको मुकम्मल ब्रीफ भी किया जाए, उसको बताया भी जाए, एतमाद में भी लिया जाए और वो कम अज़ कम एक नुक्ते पर इस पे इकट्ठे हों कि पाकिस्तान की जो कौमी सालमियत है इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूद ना होना, मैं गुजारिश देखिए, गुजारिश ये है कि चूंकि इस प्रोटोकॉल के लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म उस कमेटी के मेंबर नहीं थे और ये ब्रीफिंग थी आपकी पूरी जो सियासी लीडरशिप है उसको और पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी। अब दूसरा इसमें अहम चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक डिसीजन कर चुका है। वो डिसीजन ये है कि हम सबके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, चीन के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, तमाम हमारे रीजन के अंदर सऊदी अरब के साथ भी, लेकिन अब उस ताल्लुकात के हवाले से
ایک برابری کی سطح پہ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی عسکری قیادت کا اور آپ کی سیاسی قیادت نے آج اس کا کھل کر اظہار بھی کیا. اس بریفنگ کے بعد بھی آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نواز کے صدر بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, انہوں نے بھی باہر نکل کے جو بات چیت کی, جو بڑی مختصر سی بات آپ نے دکھائی, اس میں کہا کہ ایک بہترین بریفنگ تھی اور تمام جو لوگ تھے پارلیمانی قیادت اور سیاسی قیادت اس کو اعتماد میں لیا گیا. بڑی پیش رفت ہو رہی ہے اس خطے کے اندر. افغانستان سے امریکی فوجوں کا جانا, طالبان کی پیش قدمی, پھر انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات, کشمیر کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹرنل جو ایشوز ہیں وہ ایک بڑے چیلنج کے طور پہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ان حالات میں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور آپ کی عسکری لیڈرشپ کا ایک پیج پر ہونا, حکومت نہیں پوری آپ کی سیاسی قیادت کا, یہ از حد ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ گوز ٹو جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور جنرل فیض حمید جو DGI ہیں, کہ انہوں نے اس ایشو پہ کم از کم آپ کی ملکی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کو ان تمام صورتحال سے آگاہ کیا جو چیلنجز آج پاکستان کو درپیش ہیں. اور ایک بڑی اہم پیشرفت پچھلے عرصے میں ہوئی جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ تمام جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اس میں آپ کی ملٹری کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور آپ کی سول انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان کے مابین ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب تمام انٹیلیجنس ایجنسیز آن بورڈ ہوں گی, وزیر اعظم اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور DGI جنرل فیض حمید کنوینر ہوں گے اس کمیٹی کے. اور اسی کوآرڈینیشن کے نتیجے میں یہ بھی آپ کے لیے ایک خبر ہوگی کہ جو پچھلے دنوں جو دہشت گردی کی ایک لہر پاکستان میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی تھی, کوئٹہ میں واقعات ہوئے, لاہور میں واقعات ہوئے, ودن 4 days ان کے تمام ملزمان کو نشاندہی کر لی گئی, ٹریس آؤٹ کر لیا گیا, کون ملوث ہے, ان کی بیکنگ کہاں سے ہو رہی تھی اور کون کو سپورٹ کر رہا ہے, ان تمام چیزوں تک آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے پہنچ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ آج کا اجلاس بڑا اہم اجلاس ہے. جو ابھی آپ نے شیخ رشید صاحب کی جو بات کی کہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب حکومت اور اپوزیشن دونوں یہ اس بات کا ادراک کر چکی ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اب تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں اور اس نقطے پر متحد ہیں کہ قومی سلامتی کے ایشوز پر ہم کہیں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. ایک جملہ میں کہتا جاؤں, امریکن جو اس وقت انتظامیہ کی تبدیلی نئی انتظامیہ آئی جو بائیڈن کی شکل میں, جو ان کی طرف سے بھی سرد موری کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عسکری قیادت نے اور آپ کی سیاسی قیادت نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ ہم تعلقات ضرور رکھیں گے لیکن برابری کی سطح پہ ہم کوئی یعنی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے تعلقات رکھنے کے قائل اب شاید نہیں رہے. تو میں سمجھتا ہوں ان حالات میں سیاسی قیادت نے بھی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ساری قیادت اس میں شریک ہوئی ہے, اگرچہ بڑے اختلافات ہیں سیاسی جماعتوں کے, لیکن اس وقت کی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی آرمی کی لیڈرشپ ہے, وہ اس حوالے سے یہ ڈیسیژن بھارت کر چکی ہے کہ پولیٹیکل میدان میں سیاسی جماعتیں آپس میں کھیلتی رہیں لیکن قومی سلامتی کے ایشوز پر کم از کم ہمیں تمام کو لوگوں کو اس بات دکھانا پڑے گا. ایک ہی جو ہے وہ پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں آپ کی طرف بالکل آنا چاہوں گی. بہت بولڈ قسم کا سٹانس جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے جو اس وقت ہم لے رہے ہیں اور اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں, پہلے ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے کہا ایک انٹرویو کے دوران, پھر انہوں نے اسمبلی میں بھی بات کی اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ انہوں نے جو بات کی کہ ہم پیس کے پارٹنرز تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم کسی تنازع میں امریکہ کے پارٹنر نہیں ہو سکتے. بڑی کلیئرلی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے. تو ہم اس امریکہ کو نو مور کہہ رہے ہیں جو ہمیں ڈو مور کہا کرتا تھا. کوئی ری ایکشن تو یقیناً آئے گا. جنرل صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جنرل صاحب میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک بڑا بولڈ قسم کا سٹانس جو ہے وہ ہم لے چکے ہیں. وہی امریکہ جو ہمیں ڈو مور کہا کرتا تھا ہم اس کو نو مور کہہ رہے ہیں. یقیناً کوئی ری ایکشن تو آئے گا. کتنا تیار رہنا چاہیے اور کتنا متحد رہنا چاہیے؟ دیکھیے متحد تو پاکستان کو ہر حال میں ہر وقت رہنا چاہیے, اس پہ تو کوئی شک نہیں اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی لیڈرشپ نے جو بڑا کانشیس یہ ڈیسیژن لیا ہے اور جو امریکہ کو پاکستان نے جو بھی کہا ہے اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ اتنی میچور ہو چکی ہوئی ہے کہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے, یہ قومی مفاد میں ہے. آج کے حالات اس سے بہتر فیصلہ شاید ممکن نہیں تھا اور اس فیصلے کے ساتھ جو اس کے مضمرات ہیں یا اس سے جو مسائل بن سکتے ہیں ان کا بھی پوری طرح نہ صرف یہ کہ جائزہ لیا گیا ہوگا اور اس کے سلسلے میں جو پاکستان کو مشکلات پیش آ سکتی تھی تو وہ بھی اس کا بھی پاکستان نے جواب کیا ہوگا. ایک اور چیز جو عام طور میں ہم سب بھول جاتے ہیں کہ امریکہ وہ طاقت نہیں رہی جو یہ 60 کی دہائی میں تھی یا 80 90 کی دہائی میں. امریکہ آہستہ آہستہ
अपना वो मकाम न सिर्फ खो चुका है बल्कि चीन बढ़ती हुई ताकत ने एक ताकत के तौर पर उभर के आ गया हुआ है यार। इस खिते में रूस जो किसी जमाने में इतना ज्यादा सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद थोड़ा चला गया था, वो दोबारा न सिर्फ मुतहर्रिक है, उसने भी अपनी एक पोजीशन बना ली हुई है। अब जहां तक इस खिते का ताल्लुक है और वो हालात का ताल्लुक है, ये तो हो नहीं सकता कि जो बाइडन भारत को अपनी गोद में बिठाकर पूरा मगरबी दुनिया चीन को चैलेंज करे और चीन के साथ पाकिस्तान की जितने ताल्लुकात हैं इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी पींगे बढ़ाए, ये तो हो नहीं सकता। तो लॉजिकल रास्ता है पाकिस्तान का, फिर मैं कहूँगा कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, और मैं ये भी कहूँगा कि अब हमें उस घबराहट के मुजाहरे करने की जरूरत नहीं है किसी लेवल पर भी कि अमेरिका पाकिस्तान को कुछ खास नुकसान पहुंचा सकेगा। हाँ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका एक स्पॉइलर है इस रीजन में और ये अफगानिस्तान को ऑन द बॉयल रखना चाहता है। और अभी जो इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोहों को न सिर्फ आम किया जा रहा है, दाइश को दोबारा सरगर्म किया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान पुरअमन ना हो सके। तो अफगानिस्तान का पुरअमन होना दरअसल इस खिते में तकरीबन अमेरिका के इन्फ्लुएंस का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान भी, चीन भी और रूस भी काफी हद तक इसमें शामिल है, ईरान ऑन बोर्ड आ गया हुआ है, उसके बाद ये कनेक्टिविटी की तेजी से फैलने में कुछ चीज रुकावट नहीं रहेगी। इसलिए पाकिस्तान को होशियार रहना है, पाकिस्तान को होशियार रहना। ठीक है, दिफाई तज्जियाकार जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद है। बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है इस सारे मामले के ऊपर, क्या वो दुरुस्त है, पाकिस्तान राइट ट्रैक के ऊपर है, क्या इस रास्ते पर चलकर हम जहां पहुंचेंगे वो एक सही मंजिल होगी हमारे लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कहा मजलास और बड़ा तारीखी इसको माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसके बाद मुल्क की सियासत जो है वो बदलने वाली है। शेख रशीद साहब जो हैं वो इस चीज़ का बार बार इजहार कर रहे हैं। बहरहाल इस अहम इजलास के हवाले से हम बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी अगर हम कहें कि इसमें सामने आई हैं तो वो गलत नहीं होगा। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि इज़ इट ए पॉलिसी शिफ्ट, क्योंकि अमेरिका का दौरा अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अमेरिका का दौरा हुआ, जब वापस आए बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ और कहा जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौरा रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि उससे बिल्कुल ही उलट बातें हो रही हैं। तो कोई पॉलिसी शिफ्ट आया है या फिर यही पॉलिसी है हमारी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिसी ज़रा खुल के बयान की गई है। मसला ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि अमेरिकी इंतजामिया की जब तब्दीली हुई तो पाकिस्तान की तोक़ों के बरक्स मुझे फील होता है कि जो अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ रवैया रखा गया, थोड़ा सा हार्श रवैया नजर आता है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ज़रा वाज़ेह किया है कि भाई हम तल्लुकात तो चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी चाहते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। हम चीन के साथ, चीन हमारा पुराना दोस्त है, हम चीन के साथ कोई अपने तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन हम बराबरी की सतह पर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक रिस्पेक्टफुली जो है वो इस एंगेजमेंट में रहे, अमेरिका के साथ तल्लुकात हों, चीन के साथ हों, इवन इंडिया के साथ अगर हम बातचीत करने को तैयार हैं तो हम तो हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है कि अगर जो कुछ कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है उसको से इंडिया विड्रा करे, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम कश्मीर के मसले पे बैठ के बात करने को तैयार हैं, लेकिन मसला ये कि किसी बराबरी की सतह पर हम ना इंडिया से दब के कोई या उससे झुक के उसके सामने बातचीत करने के लिए मरे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही प्राइम मिनिस्टर ने भी जो स्पीच की उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम था। लेकिन आज के इजलास में जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि आपने देखोगे पिछले कुछ अरसे से अपोजिशन और हुकूमत पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ बजट के इजलास में, आपने वो भी देख लिया, एक दूसरे के करीब आने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। हत्ता कि किसी भी इश्यूज के ऊपर आपने देखा कि पार्लियामेंट में जो माहौल बनता चला जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर तकरीर करना चाहते हैं, अपोजिशन नहीं करने देना चाहती, शहबाज शरीफ साहब तकरीर करना चाहते हैं, हुकूमती अरकान नहीं करना चाहते, और ये हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम भी ज़्यादा लग रहा था कि हुकूमत खुद भी माहौल ख़राब करती है, इसलिए कि हुकूमत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इन हालात में अगर एक ऐसी इजलास जिसमें तमाम सियासी जमातें, आपकी पार्लिमानी कायदीन सारे मिल बैठे उस ब्रीफिंग में जो आपको आपके इंटेलिजेंस के सरबराह ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद दे रहे हैं, आर्मी चीफ उसमें शरीक हैं, और ये सारी चीज़ें उनको वो ब्रीफिंग दी जा रही है
जो चैलेंजेस इस वक्त आपको दरपेश हैं, और मेरा ख्याल है मलिक साहब, ये इंटरनल ज़रूरी सिक्योरिटी भी था। जब आप- एंड एक्सटर्नल हाँ, सिक्योरिटी। जब आप इतना बोल्ड स्टांस ले रहे हैं तो ये जरूरी भी था कि आप अपनी 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 वो यूनिटी भी दिखाएं। मैं समझ देखिए हाँ। दूसरी बात ये कि आपकी इस वक्त जो आपको अंदरूनी तौर पे जिन मसाइल का सामना है, ये दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर सर उठा रही है, और इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे वही लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का बड़ा इम्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। वहाँ अगर तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर फौजी ताकत से कब्जा करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी इस वक्त की अस्करी लीडरशिप इसके ऊपर निगाह रखे हुए है। और ये सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी किसके पास हैं? आपके इंटेलिजेंस के इदारे के पास है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं इस वक्त इंटरनली जो आपको थ्रेट्स हैं और एक्सटर्नली जो थ्रेट्स नहीं तो मलिक हैं साहब, वो ये- सामने ये- रखी गई हैं आपकी पार्लिमानी और सियासी हाँ, क़यादत के ये जो सामने। नई लहर है ये कनेक्टेड हो सकती है पाकिस्तान के स्टांस से, या पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, इसलिए कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान में किरदार था, देखिए हम अफगानिस्तान में क्या बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वहाँ के लोगों को राइट दिया जाए, उनकी अपनी हुकूमत हो, वहाँ पे किसी की मुदाखलत ना हो, और वो वहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, खा हुकूमत जिसकी भी आती है वहाँ पे, इवन पहले अशरफ गनी साहब और जो अफगान हुकूमत इस वक्त है, वो इसके बावजूद कि पाकिस्तान के साथ वहाँ से क्या कुछ नहीं होता रहा, जिसके बारे में हमने बारहा अफगान क़यादत को बताया कि वहाँ आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती सही है। है। बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वहाँ पे आपकी ज़मीन इस्तेमाल की जाती है, और जो उनके बयानात भी हैं अफगान क़यादत के, आपने देखे जिस किस्म के बयानात पाकिस्तान के खिलाफ आते रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ उनको एंगेज भी किया, उनको ब्रीफ भी किया, उनको बताया कि आपके लिए क्या इस खित्ते के अंदर नुकसान हो सकते हैं और उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो सकता है। इसलिए फिर अमेरिकन तालिबान को बातचीत पे लाना, उनमें बैठना, ये सारे मसले को पाकिस्तान ने बिल्कुल एक इस तरीके से देखा है कि अफगान मसला भी हल हो, अफगान एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे वहाँ पे जो हुकूमत बनती हुई अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। हम किसी के साथ तल्लुकात बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे, हम लड़ने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का ड्यू रिस्पेक्ट है वो पाकिस्तान को मिले, जो भी इंटरनेशनली कवानीन है, देखिए हम उसको भी एंगेज करने को सही है। तैयार हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती है ना जहाँ पर हमारी मजबूरियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं FATF की बात कर लूँ या मैं IMF की बात करूँ, आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात, कौमी सलामती का ये इजलास जो मैसेज गया उसके बाद पाकिस्तान को टफ टाइम मिल सकता है, पाकिस्तान की मुश्किलात? मेरे ख्याल में FATF के बारे में जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, आपने देखी होगी, वो बड़ी क्लियर थी कि ये फैसला करना होगा कि वो एक पॉलिटिकल FATF बनता जा रहा है कि या आप उस पॉलिटिकल जो है प्रेशर से निकलना चाहते हैं। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट तकरीबन वो सारी चीज़ें पूरी की। अब एक पॉइंट पे अगर आके उस पर एतराज़ करना और ग्रे लिस्ट में रखना, मैं समझता हूँ ये सरासर ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। ये दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अब अपना स्टांस बड़ा वाज़ेह कर चुका है। हम किसी दबाव में नहीं आना चाहते, हम किसी ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहते कि जो एक तरफा रिलेशन हो कि जी हम मरे जा रहे हैं उससे तल्लुकात रखने के लिए, ऐसी सूरत हाल नहीं है। बराबरी की सतह पर हम तल्लुकात रखना चाहते हैं। ये पहली दफा हुआ, इतना बोल्ड स्टांस पहली दफा है। मैं समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इतना बोल्ड स्टांस में बहरहाल किरदार आपकी इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI सईद फैज़ हमीद का है कि अगर इस स्टांस के लिए, अब देखिए सियासी जमातों के साथ, पार्लिमानी सियासी जमातों के साथ, और फिर आपकी अपोजिशन की सियासी जमातें, बहुत सियासी जमातें जो फौज के ऊपर तनकीद भी करती हैं, आपने देखा होगा जो इस आज के इजलास के अंदर भी शरीक थी, लेकिन सबको ऑन बोर्ड करने का क्रेडिट भारत उन्हें जाता है कि तमाम ऑन बोर्ड हों कौमी सलामती के इशूज़ पर, और एक दुनिया को वाज़ेह पैगाम चला जाए कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती पर, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। उनको जाता है बिल्कुल। कौमी सलामती का अगर कोई मसला होगा तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं जो वो एक जगह आपको मिलेंगी। ये मैसेज जो है अब वो आज गया, जो कि बड़ा पॉजिटिव मैसेज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शुक्रिया कहेंगे मलिक साहब को, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक, वापस आएंगे। अगर ये कह रहे हैं कि विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स को हम बिल्कुल छोड़ दें, वी विल अरेस्ट दोज पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ टैक्स। अब फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे।
वफाकी इदारा शुमारियात ने गुज़श्ता माली साल में अशिया ज़रूरिया की कीमतों की एक जायज़ा रिपोर्ट जारी की है जी, जिसके मुताबिक खाने पीने की बेशतर अहम अशिया की जो कीमतें हैं उनमें नुमाया इजाफे का रुझान रहा है। एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि माली साल 2020-21 में महंगाई की औसत शरह जो है वो 8.9% रही है। जून में शरह 9.7% रिकॉर्ड की गई थी। मई की निस्बत जून में महंगाई में 0.24% कमी हुई। मगर रिपोर्ट के हिस्सों पर नजर डालें तो आम आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी की अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा ही दिखाई देगा। ये वो रिपोर्ट है जो साल 2021-22 के बजट के बाद सामने आ रही है। महंगाई के तूफान में घिरी कौम को ये बताया गया कि इस साल अवाम का बजट पेश किया जाएगा। बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा, मुआशी तौर पर कमजोर तबके को ऊपर लाया जाएगा। मगर यहाँ तो बजट के 2 रोज बाद ही तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। कल वज़ीर-ए-आज़म ने पोस्ट बजट की तकरीर की, मगर तकरीर में ना कहीं लोड शेडिंग थी, ना ही कहीं गैस की कमी का जिक्र था, बल्कि तकरीर का 60% जो हिस्सा था वो मजहबी लेक्चर था, 30% खारजा पॉलिसी थी और सिर्फ 10% बजट के मामलात पर। मुल्क में बिजली गायब है, गैस गायब, गंदम महंगी, आटा महंगा, घी, दालें, सब्जियां महंगी, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी। नए पाकिस्तान में सब कुछ तो महंगा, फिर वज़रा की कारकर्दगी पर तारीफें कैसी हो रही हैं? बजट में आवाम को रिलीफ जो है वो कैसा मिला, जिसके बारे में हर वक्त बात की जाती है। फ़ारूक सलीम साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन किया। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट हमें ये बताती है जी 2021 साल की कि पिछले साल के मुकाबले में महंगाई में इजाफा हुआ है और ये अशिया ज़रूरिया जो कि एक आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसमें हुआ है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि ये अवामी बजट है, आवाम के लिए पेश किया है, तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रही। देखिए, पिछले 15-20 साल का अगर बजट की तारीख आप देख लें तो बजट से पहले सभी हुकूमतें ये कहती हैं कि ये आवाम दोस्त बजट है, ये गरीब दोस्त बजट है, ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। ये 3 नारे या 3 बयानियां आप सुन लीजिए, ये तो मैं मुसलसल पिछले 15-20 साल से हर बजट से पहले ये सुन रहा हूँ। जो नई चीज इस बजट में देखी गई थी, जो सियासी बयानियां उठाया गया था, वो ये था कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, कि इस बजट के नतीजे में जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत बढ़ेगी। लेकिन बैक टू जो आप बातें कर रही थी, देखिए वो तो टनों के हिसाब से अदाद-ओ-शुमार पिछले हफ्ते भर से हम सबके ऊपर फेंके जा रहे हैं। जो असल मामलात हैं वो मैं समझता हूँ 2 या 3 हैं घरेलू बजट के हवाले से। कौमी बजट तो आपने दे दिया, क्या उसका कोई रिश्ता है घरेलू बजट के साथ? घरेलू बजट जो चलता है वो तो चलता है आटे की कीमत के ऊपर, चीनी की कीमत के ऊपर, महीने के बाद बिजली का बिल कितना आएगा, अंडों का क्या भाव है। जिस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, अगर आप उसको गौर से देखिए, एक तो महंगाई है। मैं चाहता हूं कि महंगाई और खुराक की महंगाई में एक तफरीक सामने रखी जाए, बिकॉज पाकिस्तान के तकरीबन 80% आबादी ऐसी है जो अपनी 80% आमदन जो है वो खुराक की चीजों के ऊपर खर्च कर देती है, क्योंकि गुर्बत इतनी ज्यादा है। तो खुराक की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, अगर पिछले जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जून के महीने की आई है, वो ये कहती है कि जून 2021 में जून 2020 के मुकाबले में अंडों की कीमत 40% ऊपर है, कुकिंग ऑयल की कीमत 30% ऊपर है, टमाटर 25% महंगे हैं, चीनी 21% महंगी है, गंदम 20% महंगी है। ये अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस रिपोर्ट में लिखा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा फारूक साहब, मुझे ये बताएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है वो गैस का बहरान तो है ही, बिजली की लोड शेडिंग की एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि पिछली हुकूमत जो है वो पावर प्लांट ज्यादा लगा गई है, बिजली बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो अभी जब गर्मी आई है तो बिजली गायब हो गई है, तो क्या मिसमैनेजमेंट हो रही है, क्या हो रहा है? बड़ा ही जबरदस्त सवाल किया आपने। वाकई पिछले साल 2 साल से हमें यही कुछ बताया जा रहा है। ये आप समझिए कि पंजाब पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ती है तो फिर वो भाग निकलते हैं, फिर वो काम नहीं आते। तो अब इतने सारे प्लांट लगाए गए जो हमें बताया गया, और न सिर्फ ये बताया जा रहा है, अगर आप ढूंढें तो 200 अरब करके 1 या 2 मरतबा जो सुकुक जो कर्जाजात लिए गए हैं वो दिए गए हैं IPPs को, और यही बताया जाता रहा है कि इतनी कैपेसिटी पेमेंट है, PMLN वाले इतनी सारे बिजली के प्लांट लगा गए हैं। अब ये अचानक क्या हुआ? देखिए, थोड़ा सा पेचीदा मामला है, और लग रहा ऐसे है कि ये प्योर एंड सिंपल जो है ये पुअर मैनेजमेंट है।
یعنی کہ ناقص مینجمنٹ ہے، آپ غلط فیصلہ سازی، یعنی مس مینجمنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب، معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بالکل معاشی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ آخر یہ بجٹ کیسے عوامی بجٹ بالکل بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.